Hello everyone. Now we study lecture 4 of electronics. Last lecture you study intensity of electric field and electric dipole. Now we study application of electric dipole. In this topic initially torque on electric dipole in uniform electric field. एक डाइपोल जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लाई कर रहा है, उस पर फील्ड के कारण कितना टॉर्क अप्लाई होगा. We have a dipole AB which has against charge minus q and plus q at minimum distance to L, which is applied at theta angle from uniform magnetic field capital E. Then an electric force is applied on both poles as minus q and plus q. Then it's form a torque which used to replace theta shift of electric dipole. If perpendicular distance becomes to be BC, then in triangle BAC के through sin theta equal perpendicular upon base BC equal AB sin theta, where AB has a confirmed value 12, which is separation between against charge and electric dipole, 12 sin theta BC. We have in first and now applied torque. Torque is divided by tau equal applied force into perpendicular distance BC, while electric force F is equal QE on every charge, then torque becomes to be QE and perpendicular distance BC 12 sin theta, which gives 2QL into E sin theta. It is the value of electric dipole moment, we denoted by P, E sin theta. In vector form, we have tau equal P vector cross E vector. In class first year, you study cross multiplication of vectors, which is P vector cross E vector gives PE sin theta. It is the required value of tau. In different cases, while note first, we have theta equal 0 degree, then it gives sin 0 equal 0, therefore tau minimum equal 0. And note second, theta equal 90 degree, sin 90 equal 1,
it gives maximum value of tau P. It has required maximum value of tau or torque on electric dipole in uniform electric field. Now, next application of electric dipole moment and electric dipole. We find intensity of electric dipole on axle. Intensity of electric dipole on axis. एक्सिस में आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डाइपोल मीडियम में है, लेकिन इससे एक्सिस कंडीशन में आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है. लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस q and plus q AB is applied in uniform electric field in which separated charge are minus q and plus q distances. A point C is fixed at smaller distance from electric dipole. Then distance from B and C it becomes 2b r minus l and it becomes 2b r plus l. It is आपने यहाँ देखा ये डिस्टेंस l है, ये डिस्टेंस l है, तभी 2l बना. ये r है तो ये जब r में से l सब्ट्रैक्ट करें तो bc बन जाएगा r माइनस l और r में जब l ऐड करें तो ये बन जाएगा आपका r प्लस l. If intensity of electric field on point C by plus q and minus q charges are E1 and E2 respectively, then we can say of electric field on point C is E1 equal 1 upon 4 pi epsilon naught k, where k is per dielectric constant of medium and charge q upon distance square r minus l का whole square. This is the first equation. Similarly, by minus 2 charges by plus 2 charges E2 equal 1 upon 4 pi of epsilon naught k q upon r plus l का whole square. 2 second. We have a relation between intensity of electric field and distance, which gives intensity of electric field indirectly proportional to square of distance. Therefore, we can say distance between BC is less than distance between AC. Therefore, E1 is greater than E2. Finally, we have resultant intensity of electric field equal E1 minus E2. आप देख रहे हैं इनमें जो है q अपॉन 4 नॉट दोनों में कॉमन आ रहा तो ये बना आपका q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k. ये रहा 1 अपॉन r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस l का होल स्क्वायर. आप जो है इनको आप कॉमन लीजिए, जब एलसीएम लेंगे तो ई यहाँ पे फॉर्म होगा आपका
Q अपॉन 4πε0 के, ये बना यहाँ पे R माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस टाइप से। जब इसे डिवाइड करेंगे एलसीएम में तो ये बचेगा आपका आर प्लस एल का होल स्क्वायर, नेक्स्ट यहाँ बचेगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसका आप स्क्वायर ब्रैकेट कीजिए तो इक्वल फॉर्म हुआ Q अपॉन 4πε0 के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL एंड माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस प्लस 2RL अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कि एल स्क्वायर लेस देन ऑफ आर स्क्वायर। एल स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर कंपेयर में बहुत छोटी हो तो एल स्क्वायर को यहाँ छोड़ देंगे तो ये वैल्यू आपकी फॉर्म है। देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, इक्वल फॉर्म हुआ आपका Q अपॉन 4πε0 के, ये आपका 4RL है 4RL, ये आपका R4 है तो एक R से एक R आप कैंसिल रहा, इक्वल Q को आप अंदर ले जाएंगे तो 1/4πε0 के की वैल्यू 1 लिख सकते हैं यहाँ पे। और वैक्यूम के लिए यहाँ पे जो वैल्यू है आपकी के की वैल्यू 1 तो यहाँ पे रहा 2 × 2QL, इस टाइप से 2 × 2 4 एंड QL, ये आपका RQ और जी वैल्यू बनी आपकी P की तो ये बना 1/4πε0 2P/RQ। इन वेक्टर फॉर्म इक्वल 1/4πε0 ई वेक्टर ये रहा 2P वेक्टर अपॉन RQ इन R कैप, ये आपके यूनिट वेक्टर फॉर्म में है। यदि आपको पोजीशन वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो ई वेक्टर इक्वल बनेगा आपको 1/4πε0 2P/R4 into R vector, required value of intensity of electric field in axis wise conditions. Now in equatorial conditions, intensity of electric field on एक्सल जी आपका रहा नेक्स्ट इक्वेटोरियल। अब इक्वेटोरियल पोजीशन में आप यहाँ पे इंटेंसिटी देखेंगे, लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB which has against charge at 12 separation. A point C is lie on equatorial position at angle theta. Initially, it gives E1 and it gives E2. Then resultant intensity of electric field gives in the form of component of vectors. It has theta and this theta angle, and ये आपका E1 cos theta, ये रहा आपका E1 sin theta, E2 तो E2 cos theta, एंड आपका G2 तो ये परपेंडिकुलर रहा आपका E2 sin theta। आप यहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी पॉइंट C पर फाइंड करने वाले हैं। इसके लिए आप जो है सबसे पहले लिखें, समझे यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड बाई माइनस क्यू चार्ज। जब माइनस क्यू चार्ज के थ्रू आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ फाइंड करें तो ये आपका रहेगा E1 1/4πε0 K is डायरेक्टली कांस्टेंट ऑफ मीडियम, देन Q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, ये L है आपका, ये डिस्टेंस यहाँ पे R डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, तो ये परमानेंट डिस्टेंस, ये रहा आपका हाइपोटेन्यूज डिस्टेंस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सिमिलरली हियर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर होल स्क्वायर, E1 इक्वल 1/4πε0 K Q अपॉन स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बना। ये बना आपका इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली और प्लस क्यू चार्ज के थ्रू आप लिखेंगे तो आपने देखा कि डिस्टेंस सेम है और चार्ज आपका इंटेंसिटी डिपेंड करती नहीं चार्ज की साइन पर, तो इसलिए आपका E2 हो जाएगा आपका 1/4πε0 K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यदि आप कंपेयर करें इन इक्वेशनों को तो आप देखेंगे कि E1 is equal E2, therefore E1 sin theta and E2 sin theta also equal E1 sin theta and E2 sin theta cancelled each other. Therefore, resultant intensity of electric field becomes to be defined by the addition of components of E1 and E2 in cos theta form, which gives E equal E1 cos theta plus E2 cos theta. आप देख रहे हैं यहाँ पे E1 और E2 वैल्यू इक्वल है और E1 sin थीटा E2 sin थीटा इक्वल और अगेंस्ट डायरेक्शन में होने के कारण कैंसिल हो गए, तो यहाँ परपेंडिकुलर इंटेंसिटी से फाइंड होगा आपके E1 cos E2 cos थीटा। तो ये आपने ऐड कर दिया। यहाँ आप देखें E इक्वल, ये आपका वैल्यू आपकी ये बनी आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड से आप कंपेयर करें तो E1 इक्वल E2 लिख सकते हैं cos थीटा, ये भी आपकी E2 cos थीटा लिख सकते हैं बाय इक्वेशन थर्ड। ये रहा यहाँ पे 2 of E2 cos थीटा, E2 की आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए बाय इक्वेशन सेकंड, E इक्वल 2 of E2 की वैल्यू 1/4πε0 K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ पे आप cos थीटा वैल्यू पुटअप करेंगे। देखिए बेटा cos थीटा यहाँ पे क्या होगा, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, बेस आपका L है, हाइपोटेन्यूज आपका है रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पे आप कंडीशंस की यूज कर सकते हैं। ये रहा आपका L अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। 2QL साथ में लिखेंगे तो E इक्वल बनेगा आपका 1/4πε0 K 2QL, ये आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ पे अंडर रूट, यहाँ 1 पावर, तो ये पावर है 3/2। इसमें भी आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, कैसे L स्क्वायर लेस देन ऑफ R स्क्वायर एंड K इक्वल 1 फॉर वैक्यूम। ये आपकी जो वैल्यू फॉर्मूला यहाँ पे आप देखें E इक्वल 1/4πε0, ये आपका P अपॉन L स्क्वायर हट गया तो स्क्वायर से स्क्वायर क्या, ये बना आपका R3। ये फॉर्मूला बन जाता है जो आपने पीछे देखा था, एक्सेल कंडीशन में था इक्वल 1/4πε0 2P/R3।
यहाँ पे आपका P अपॉन R क्यू है। अब इसका आप वेक्टर फॉर्म यहाँ पर देखें, वेक्टर फॉर्म में भी आपकी तीन पोजिशंस जो आपकी हैं, E वेक्टर इक्वल 1/4 P vector upon RQ and this R vector. Otherwise, in unit vector form, E vector equal 1/4 P upon R4 into R vector. This is now. I hope you study carefully. Thank you.